Hello students, how are you? So students, today we'll talk about the electrolytic cells. Okay. So now the question is, what are electrolytic cells? Okay, class. The question is, what are electrolytic cell? Do you remember, class? I told you electrolytic cell means the electricity is provided. Okay, and due to the electricity, the chemical reaction takes place. It's a very simple thing. Electricity is provided and the chemical reaction would take place. एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें क्या होता था? उसमें केमिकल रिएक्शन होते थे. ओके, फिर इससे केमिकल एनर्जी निकलती थी एंड द केमिकल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड एंड देन केमिकल रिएक्शन वुड टेक प्लेस. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ओके क्लास. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस होता है. ओके, व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रोलिसिस वुड टेक प्लेस. इलेक्ट्रोलिसिस यू नो, जो हमारे कैटायन एनायन है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? लिसन, इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of an electrolyte. Electrolyte is present here. It is the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or molten state. Okay, so this is the electrolysis, definition of electrolysis. Now class, I'll let you know what is the meaning of this electrolysis and what happens in the electrolytic cell. Okay, you just listen the whole lecture. Listen class, this is a electrolytic cell. Okay, and in electrolytic cell actually it consists of one container. It may be a glass container. Okay, and in the glass container actually इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं. एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है, अदर इलेक्ट्रोड इज द कैथोड. वेरी सिंपल थिंग. ओके, and as I told you, in electrolytic cells the electricity is provided. So this is the battery class. This is the battery which provides the electricity in this electrolytic cell. And this, the container is having a kind of solution. यहाँ पे एक solution है. ये solution क्या है? Actually in electrolytic cells this solution is nothing but it is the solution of electrolyte. और ये इलेक्ट्रोलाइट के कौन सा सोल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइट का आइदर एक्वस सोल्यूशन. दीज आर एक्चुअली सोल्यूशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट्स. दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स. okay, electrolytes. And these electrolytes are either in aqueous solution class. aqueous solution होंगे या तो ये, या they may be in molten state. molten state. Okay class, now just listen. Actually what happens in the whole setup electrolytic cell? What happen? The electricity is provided. Now listen class, as I told you, these are two electrodes. Okay, electricity कैसे provide होती है? These are two electrodes. You know the positive terminal of this battery which provides the electricity to the whole electrolytic cell. The battery का जो positive terminal है, it is actually connected with anode. And battery का जो negative terminal होता है, it is connected with cathode. Okay, this is cathode class. Okay, so what happens in it class? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखो, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था ना, वहां पर जो एनोड था इट वाज हैविंग नेगेटिव चार्ज. ओके, और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज था. लेकिन यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. और यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. वहां अपोजिट था, यहाँ अपोजिट है. ठीक है, वहां अलग था, यहाँ बिल्कुल अलग है. एनोड पर पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव था. यहाँ कैथोड पे नेगेटिव है, वहां है कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था. ओके क्लास, सिंपली होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं होता कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो केमिकल रिएक्शन हो जाए पूरा. ऐसा नहीं, सिंपल ये सिर्फ कुछ नहीं होता. देखो ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, एज आई टोल्ड यू दीज आर इलेक्ट्रोलाइट. अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक्चुअली होता क्या है? सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज ए बी, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो होते क्या, ऑब्वियसली इफ दिस इलेक्ट्रोलाइट की बहुत अच्छी कंडीशन
और एक इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वेन एवर दे आर प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. सो सपोज A is having negative charge and B is having positive charge. So these have been dissociated into ions, ये A और B. तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है एक्चुअली इनमें आयंस हैं. जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस. ओके क्लास, कोई प्रॉब्लम इसमें? आई थिंक देयर वुड बी नो प्रॉब्लम. So what the electricity do in this cell? Electricity do only one thing. जैसी electricity इसमें provide करते हैं, the negative charges, I mean negative जो हमारे ions हैं, negative ions of electrolyte, they'll move to the positive terminal and positive ions will move to the negative terminal. देखो यहाँ पर ये negative charges हैं, I mean negative ions हैं. These negative ions of electrolyte, these are the negative ions of electrolyte. जैसे कि ये A यहाँ पर. Okay, so these negative ions of the electrolyte, they move towards anode because anode is having positive charge. Are you getting me? और जो हमारे ये पॉजिटिव हमारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इनके आयंस हैं, दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली, आई मीन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स. आर यू गेटिंग मी? बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ. ये जो आयंस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट थे, इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड होते हैं. किसमें डिवाइड होते हैं? नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस. और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो अपोजिटिवली टर्मिनल, अपोजिटिवली इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो भी अपोजिट पे जाएंगे. सो नेगेटिव वाले ऑब्वियसली एवरीवन नोज, नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे जाएंगे. और एनोड इज व्हाट? एनोड इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ये कैथोड की साइड में जाएंगे क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ओके क्लास, वेरी सिंपल थिंग्स. जो नेगेटिव हमारे आयंस, नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ओके, ये तो इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया? सिंपल पहले एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया? इन चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की साइड में इनको रन कराया, नथिंग एल्स. ये ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में थे, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड करी, ये आयंस रन करने शुरू कर देते हैं. कहाँ रन करते हैं? अपोजिट चार्ज, जिस इलेक्ट्रोड पे अपोजिट चार्ज होता है उधर की साइड में मूव करते हैं. Positive charge will move to the negative electrode and negative charged ions will move to the positive electrode. So ये जो हमारे पॉजिटिव हमारे आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? ये किधर की साइड मूव कर रहे हैं क्लास? ये कैथोड की साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं कैटायन. These are cations. Okay, ये मैं रब करता हूँ डेफिनेशन. Okay class, the ions which move towards cation, the ions which move towards cathode are known as cation. Okay, and the ions which move towards anode, ये negatively charged जो है यहाँ मूव करेंगे एनोड की साइड में, इन्हें बोलते हैं हम एनायन. ओके क्लास, सिंपल चीज. पॉजिटिवली चार्ज्ड को हम कैटायंस बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज को हम बोलेंगे एनायंस. अब देखो ये एनायंस और कैटायन करते क्या है यहाँ पर. ये जो हमारे पॉजिटिव, हम ये ले लेते हैं, सपोज ये ए और बी इलेक्ट्रोलाइट थे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट ये दो आयंस में डिवाइड हुआ, ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव सपोज. ओके, सो ये नेगेटिव है, ये हमारा हुआ एनायन. एज आई टोल्ड यू, इट इज एनायन एंड दिस इज कैटायन. ओके क्लास, सो anion will go towards, किधर जाएगा जरा बताओ? anion is having negative charge, तो एनोड और कैथोड में किस पे पॉजिटिव चार्ज है? एनोड पर. सो इट विल गो टुवर्ड्स, यहां जाएगा एनोड की साइड में, इट विल गो टुवर्ड्स एनोड. कैटायन विल गो टुवर्ड्स कैथोड. ओके क्लास, अब ये एनोड पर जाके क्या करेगा? इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है, सो ये करेंगे क्या यहाँ पर जाकर? ये एक्चुअली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. ये था, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये बन जाएगा ऐसे.
मतलब ये एक न्यूट्रल बॉडी बन जाएंगे, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये एनोड पर ये जितने भी है ना, ये ए जैसे आया तो ये इस पर आएगा और यहाँ पर ये अपना चार्ज लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक न्यूट्रल स्पीशीज होके और यहाँ पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा इनका। आर यू गेटिंग मी? इन द सेम मैनर कैथोड पे क्या करेंगे, ये जैसे बी है इस पे प्लस चार्ज है, कैथोड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ओके दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो दिस कैटायंस विल टेक द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम कैथोड, इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये चेंज हो जाएंगे एक न्यूट्रल स्पीशीज, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज है हमारी, ओके यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल हुआ, तो यहाँ पर ये आकर ये भी डिपॉजिट हो जाएंगे, न्यूट्रल होकर ये भी डिपॉजिट होंगे, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ डिपॉजिशन हो रहा है। वेरी सिंपल थिंग क्लास, वेरी सिंपल थिंग इज टेकिंग प्लेस। बट अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जो एनोड पर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है हमारा, ओके एनोड पर ए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, ओके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। सो क्लास लिसन, सो यहाँ पर एनोड पर हो क्या रहा है, एनोड पर जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे एनायंस थे, ये एनायंस एनोड पर जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ये एनायन है, इट विल गो टू एनोड एंड इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। सो what do you call this process? It is a kind of oxidation. This is oxidation. So listen class, एनोड पर ये जो एनोड है इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायंस थे, इलेक्ट्रोलाइट के जो एनायंस थे, दे आर कमिंग टू द एनोड, एनोड इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज एनायंस जो है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। So at anode, what is taking place? Obviously, oxidation is taking place. Just listen, class. Okay. और ऐसे ही यहाँ पे कैथोड पर देखो, द कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड एट कैथोड व्हाट इज हैपनिंग, कैथोड पर जो कैटायंस हैं दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन and they are converting into neutral body and then they get deposited here. Are you getting me? So neutral body कैसे बने, they are taking the electron, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन। सो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ आया क्लास? सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद दोनों कैटायन और एनायन न्यूट्रल बॉडी बन जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी बने, न्यूट्रल स्पीशीज, ये बने न्यूट्रल, और ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, जरा याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा था, एनोड वहां पे डिप्लीट हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ऑन बोथ कैथोड और एनोड देयर इज द डिपोजिशन ऑफ स्पीशीज, देयर इज द डिपोजिशन ऑफ एटम्स, दोनों पे डिपोजिशन हो रहे हैं। और एक चीज ये ध्यान रखो, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ओके। और वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर रिडक्शन होता था, सो कैथोड पर यहां पर भी क्लास रिडक्शन ही हो रहा है। अब मैं इन सबको रब कर देता हूं, सिंपल वे में बताता हूं। सो लिसन क्लास, एनोड एक तो प्लस चार्ज होता है एनोड पर, यहां पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, और यहां पर कैथोड पर जो होता है ये रिडक्शन होता है।
ओके, एनोड पर कौन मूव करता है? एनायंस, एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पर कौन आता है? कैटायंस, जिन पर प्लस चार्ज होता है। ओके क्लास, अब ये आप लोगों की सब समझ आ गया होगा। एक चीज मैं और बताता हूँ। एक होता है जैसे मैंने आपको बताया, रब कर दूं इसको मैं, आप या इधर आधा लिख देता हूँ। देखो जैसे ये एनायन था, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट था ए बी, ये बी प्लस, ये ए माइनस। ओके क्लास, हो क्या रहा था यहाँ पर? ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ओके, ये हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है? बी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था और इट इज गोइंग टू चेंज इनटू बी। ये जो चेंज हुआ ना क्लास, इसको बोलते हैं, ये चेंज हुआ, देखो ये एक कैटायन था, इट इज गोइंग टू चेंज इनटू अ न्यूट्रल स्पीशीज। दिस चेंज इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज। क्लास इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ये भी जो चेंज हुआ ना, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक न्यूट्रल स्पीशीज बना, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी चेंज। This is also known as primary change. These are primary change. Okay class, I think everything would be clear to all of you. अब तक सब ये ध्यान रखना है, प्राइमरी चेंज है। अब इनमें एक और चेंज होता है विच इज नोन एज सेकेंडरी चेंज, वो मैं बाद में बताऊंगा सेकेंडरी चेंज कैसे होता है। अभी मैं एक दूसरी चीज ले लेता हूँ क्लास, उसको रब कर देता हूँ सबको। ओके, नाउ लिसन क्लास, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स। क्लास लेसन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आईआईटी और नीट में बहुत से क्वेश्चंस इनसे आते हैं, ध्यान रखना। नीट में और आईआईटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स में। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट्स क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये मेरा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने बनाया था, ठीक है। ये एक हमारा इसका एनोड आ गया और ये एक इसका कैथोड आ गया। बोथ आर कनेक्टेड विद अ बैटरी, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये एनोड है और ये कैथोड है। मैं सिंपली ऐसे बना के दिखाता हूँ। अब देखो लेसन, ध्यान रखना सारी चीजें जो बोली थी मैंने। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट में क्या होता है? सपोज वी आर हैविंग मॉल्टन NaCl। इनके प्रोडक्ट कैसे ये डिपॉजिट होता है, ये मैंने अभी बताया ना। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है एंड द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है इसमें। ये इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने बताया। तो ये डिपॉजिट कैसे होते हैं? हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट मे बी ऑफ, आई मीन ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो कंडीशन में हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में और हो सकते हैं मॉल्टन में। दोनों में से किसी भी कंडीशन में ये हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब NaCl, और पता है दोनों ही कंडीशन में मॉल्टन में होंगे, सो दे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट वुड बी डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स। अगर ये एक्वस सोल्यूशन में होंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वुड बी डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स। कैसे पता करें? देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये बोर्ड में एनसीईआरटी में भी एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, और बोर्ड में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी और नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है। सो लिसन, मैं पहले ले लेता हूँ मॉल्टन NaCl। मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। पहले हम ले लेते हैं मॉल्टन NaCl ले लेता हूँ मैं। मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl है। तो इस NaCl, it means NaCl is only the NaCl, nothing else. Okay, so molten NaCl, first of all what will happen, this NaCl would be broken down into two ions, Na plus NCl minus. Na plus is what? It is cation and this is anion. ओके क्लास, अब क्योंकि अब मैं दो ले लेता हूँ, एक एनोड पे क्या होगा?
लिसन क्लास, एनोड इज व्हाट, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे मैंने बताया तुम्हें। और एनोड पर ऑब्वियसली कौन जाता है, एनोड पर एनायंस जाते हैं। एनोड पर एनायंस, अभी मैंने इससे पहले जो बताया था उसमें बताया था एनायंस। सो एनोड पर क्या आएगा, ऑब्वियसली जो Cl है दिस इज एनायन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये Cl जो होगा ये एनोड पर आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू Cl एंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, डू रिमेंबर क्लास, दिस इज व्हाट, इट इज अ प्राइमरी चेंज। मैंने अभी बताया था ना प्राइमरी चेंज है ये, इट इज प्राइमरी चेंज। Cl एनोड पर हो रहा है, ये एनोड का बता रहा हूँ। NaCl वी आर हैविंग, NaCl molten NaCl we are having, and first of all NaCl would be whenever the electricity is provided, NaCl is dissociated into ions. So NaCl में जो anion है it is Cl minus, it will move towards anode. ओके, एनोड पर आकर ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और एक न्यूट्रल स्पीशीज बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज एज आई टोल्ड यू। नाउ लिसन क्लास, क्या ये एक Cl एटम कैन एग्जिस्ट, you just let me know. No, it cannot exist. Why it cannot exist? Because it is a Cl ion, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो एक और Cl आयन आएगा, ओके, एनोड पर, it would again be changed into Cl and it will release electron. okay, so यहाँ पर एक और एटम आ गया हमारा, किसका, क्लोरीन का। ये दोनों एटम ही क्लोरीन के कंबाइन होंगे, ओके, एंड ये बनाएंगे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये हमारी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। सो एनोड पर वेन एवर वी टेक मॉल्टन NaCl, Cl जो होगा वो एनोड की साइड में मूव करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये फिर एक क्लोरीन गैस रिलीज होगी एनोड में। नाउ लिसन क्लास, एज आई टोल्ड यू दिस इज द प्राइमरी चेंज। Cl रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, एक बनाया, इसने Cl ने यहाँ से भी रिलीज किया एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक Cl बनाया। अब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। इज इट क्लियर क्लास? पहले इन्होंने एक Cl एटम बनाया दोनों ने, फिर इनमें चेंजेस क्या हुआ, दोनों एटम मिलकर क्लोरीन गैस बनाई है। ये तो प्राइमरी चेंज था सबसे पहले जो हुआ, मैंने बताया था नहीं बताऊंगा, ये है, ये प्राइमरी चेंज है। एंड ये Cl एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। ओके, सो वेन एवर वी टेक मॉल्टन NaCl, जो एनोड पर क्या होगा, एट एनोड द क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। ओके, अब मैं रब करता हूं इसको। अब मैं NaCl का देखता हूं कैथोड पे क्या होता है। एज यू नो क्लास, कैथोड पर Na, कैथोड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड कैथोड पर आते हैं कैटायंस, तो सोडियम जाएगा। सोडियम क्या करेगा, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन, ओके, at cathode it will take electron, and after taking the electron the sodium ion, or we can say the cation, would be changed into sodium solid। okay, so ये समझ आ गया सारा। तो जब भी हम molten NaCl लेंगे, ओके, तो NaCl लेने के बाद उसके प्रोडक्ट क्या डेवलप होंगे, एनोड पर क्या होगा, molten NaCl लेने के बाद क्लोरीन गैस वुड बी रिलीज्ड, और कैथोड पर क्या होगा क्लास, कैथोड पर सोडियम जो हमारी मेटल होगी इट वुड बी डिपॉजिटेड। ओके, सो कैथोड पर सोडियम मेटल वुड बी डिपॉजिटेड, एंड एट एनोड द क्लोरीन गैस वुड बी रिलीज्ड व्हेन द molten NaCl is taken। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके क्लास, अब मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख देता हूं, देखो यहां देखो, दिस इज NaCl molten broken down into cation plus anion। एनोड पर क्या हुआ, 2Cl माइनस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, क्लोरीन गैस वुड बी रिलीज्ड, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकले। कैथोड पर क्या हुआ, Na प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा हमारा
2Na 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा 2Na सॉलिड। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई इसकी? molten NaCl whenever it is taken out, sodium metal would be produced and chlorine gas would be released। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। ध्यान रखना हमने ये लिया है molten NaCl। ओके क्लास, इट वुड बी क्लियर। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ एक्वस NaCl ले लूँ तो प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। देखो यही मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक्वस कंडीशन में NaCl लेता हूँ तो प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट। सो नाउ क्लास, नाउ आई एम हैविंग aqueous NaCl, the product would be different। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब NaCl मैंने लिया aqueous कंडीशन में। सो NaCl फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। NaCl would be broken down into Na plus Cl minus cation anion। सिर्फ यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ NaCl ही नहीं होगा, इट इज aqueous। aqueous यू नो, aqueous मतलब वाटर भी है इसके साथ। NaCl is not individual, it is also having water। So not only the NaCl is going to dissociate into ions, water would also dissociate into ions। water would also dissociate, are you getting me? क्योंकि ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, और NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही डिसोशिएट होंगे। So water will be broken down into H plus ion and OH minus ion। ओके क्लास, अब एनोड पर क्या होगा? देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एनोड पर क्या होता है? एनोड इज हैविंग व्हाट? जस्ट लेट मी नो। एनोड इज हैविंग व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्लास। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो यहाँ एक तो Cl इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक और आयन आ चुका है, दिस इज OH माइनस। इट कैन ऑल्सो रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर Cl माइनस एंड OH माइनस, 2 आयन्स हैं। अब एनोड के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, देयर वुड बी अ कंपटीशन। यही मेन चीज है, या तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट थिंग्स आर गिवन। ओके, डिफरेंट थिंग्स आर गिवन। मैं बहुत ही सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक फॉर IIT एंड JEE। ये ध्यान रखना, इन दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करें विच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एट एनोड। दोनों कंपीट कर रहे हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो कौन रिलीज करेगा? इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? सो लिसन, वेरी सिंपल थिंग क्लास, यू जस्ट लेट मी नो। मैं एक चीज बताता हूँ, एक क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ऑक्सीजन की जो बता रहा हूँ ना उन्हीं को ध्यान रखना और सब भूल जाना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सो ये बताओ, जैसे फोन है FON, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? बताओ, सिंपल थिंग, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। आर यू गेटिंग मी? सो ये OH में अगर हम देखें, OH में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एंड दिस ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ये OH माइनस जो होगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। आर यू गेटिंग मी? और जो Cl माइनस है इसको देखेंगे तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करें तो Cl पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह सकता है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें कौन पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैप्चर करके रखेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन से कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करना चाहेगा। तो इन दोनों में कंपटीशन में कौन जीता? अगर तुम डिफरेंट बुक्स में देखोगे ना, सो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल और ये सब कहानियां दे रखी हैं, कुछ याद नहीं करना, सिंपल यही चीज देखना कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। ऑक्सीजन को होल्ड करने की
स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली क्लोरीन विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन। सो ये इस दोनों के कंपटीशन में कौन जीत गया? क्लोरीन जीता। सो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन विल रिलीज, दो आयन ले लो इसके, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस दैट वुड बी रिलीज्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा? एनोड पर। ये इसका क्या हुआ? दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके क्लास, तो ये जो पहले हमारे मोल्टन स्टेट NaCl लिया था, और अगर हम एक्वस कंडीशन में लेते हैं तब भी एनोड पर एक ही चीज हो रही है। क्या हो रहा है? एनोड पर क्लोरीन गैस ही रिलीज हो रही है। पहले वाले में भी क्लोरीन गैस ही रिलीज हुई थी जब हमने मोल्टन स्टेट में लिया था, और जब हम एक्वस स्टेट में ले रहे हैं NaCl को तब भी एनोड पर क्लोरीन गैस ही रिलीज होती है। कोई चेंज नहीं आया इसमें। अब हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड इज नेगेटिव। यहां पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन टू टेक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो दो कैंडिडेट हैं, एक तो Na प्लस और एक हाइड्रोजन आयन, दोनों कैंडिडेट हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब Na प्लस और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में कंपटीशन हुआ कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस होगा। अब बताओ कौन इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए जो रिड्यूस हो? क्लास, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चीज ध्यान रखना। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ध्यान रखो, ये मैं बता रहा हूँ, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी यहाँ पे क्लास, जिसका भी हमारा कम होता है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, ओके, वही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ओके, मैं बताता हूं तुम्हें, 1 मिनट रुको, आप देखो और मुझे बताओ। सो क्लास लिसन, हाँ, सो क्लास मैं बता रहा था आपको, जिसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन जिसका ज़्यादा होता है ना, जिसका भी ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा किसी का, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड। ये मैंने लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आपको बताया था, जिसका हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस पहले होता है। अब देखो, अगर मैं Na का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखूं तो इसका कितना होता है? इसका होता है -2.71, और हाइड्रोजन का यू नो इट इज़ 0। जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इसका होता है -2.71, हाइड्रोजन का है 0। तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है? यू जस्ट लेट मी नो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। ये अपने ब्रेन में डाल लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही बताया था, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होता है, इट विल गेट रिड्यूस्ड। अब इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन में और सोडियम में किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर, सो इट विल गेट रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करना। कैथोड पे क्या करते हैं आयंस? जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। सो इन दोनों में कौन कंपटीशन जीतेगा? Na प्लस की ज्यादा कैपेसिटी है टू गेट इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन H प्लस आयन की ज्यादा कैपेसिटी है टू गेट इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, तो हाइड्रोजन आयन जो है इसकी कैपेसिटी इज मोर टू टेक इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट रिड्यूस्ड। तो इन दोनों की कंपटीशन में H प्लस आयन विल विन द रेस। ओके, ये जो पॉइंट है जो मैंने बताया आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ये लिख लेना इसको पक्का, पक्के से, ठीक है। सो सोडियम एंड हाइड्रोजन में रेस जीता हमारा हाइड्रोजन आयन, बिकॉज इट इज हैविंग मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो H प्लस आयन यहाँ पर, इट वुड टेक इलेक्ट्रॉन, ओके,
and it will change into hydrogen. ये हमारा primary change class, primary change. Do you remember primary change? One more hydrogen, it will take electron, and again one more hydrogen atom would be produced, primary change. These two hydrogen atoms will combine together to form molecule of hydrogen, and hydrogen gas would be released. This is the secondary change. Okay class. So क्लास इसमें क्या देखा हमने, मॉल्टन स्टेट में जब हमने लिया था, आप चेक करना, मॉल्टन स्टेट में जब लिया था तो प्रोडक्ट क्या बने थे हमारे, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी मॉल्टन स्टेट में. एक्वस कंडीशन में NaCl लेते हैं तो भी सेम ही हो रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस इज बीइंग रिलीज्ड. कैथोड पर उसमें क्या हुआ था, वहां पे सोडियम मेटल वाज डिपॉजिटेड. डू यू रिमेंबर, मॉल्टन स्टेट में सोडियम मेटल वाज डिपॉजिटेड, बट एक्वस NaCl अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड. आई मीन एट एनोड और कैथोड दोनों पर ही गैस रिलीज हो रही है, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड. सिर्फ हमने चेंज क्या किया है, वहां पर मॉल्टन NaCl लिया था और यहाँ पे हमने एक्वस NaCl लिया, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट था इट इज टोटली चेंज्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये IIT में और सब में पूछा जाता है. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है देखो मैं बताता हूँ. क्वेश्चन आता है, when we take aqueous NaCl solution, okay, so electrolytic product would be, क्या होगा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट, पहला इन्होंने दिया एनोड पर हमारा क्लोरीन गैस, ओके, और कैथोड पर जो होगा वो Na मेटल. दूसरा दे दिया एनोड पर मेटल सोडियम, कैथोड पर क्लोरीन गैस. थर्ड ऑप्शन दिया एनोड पर क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. फोर्थ जो है वो नन ऑफ द अबव. सो क्लास हमने अभी देखा, अगर हम एक्वस NaCl सोल्यूशन लेते हैं सो आंसर वुड बी दिस थर्ड, एनोड पर क्लोरीन गैस वुड बी रिलीज्ड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड. ओके क्लास, आंसर वुड बी 3. लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूं, यहां पर आ जाए मॉल्टन NaCl. इफ द क्वेश्चन सेज इफ वी टेक मॉल्टन NaCl सोल्यूशन NaCl, सो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होगा, अब आंसर थर्ड नहीं होगा, अब आंसर क्या होगा बताओ, एनोड पर क्लोरीन गैस एंड कैथोड पर क्या होगा, सोडियम मेटल वुड बी प्रोड्यूस. तो आंसर वुड बी फर्स्ट. तो दोनों केसेस में आंसर अलग हुआ है क्लास. ओके, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसमें एक चीज और होती है क्लास, मैं रफ कर देता हूं उसको. इफ वी चेंज इलेक्ट्रोड, आई मीन इलेक्ट्रोड को ही अगर हम चेंज करते हैं, तो एक कंडीशन हो गई मॉल्टन स्टेट एंड जो लिक्विड स्टेट, मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस कंडीशन में. नेक्स्ट इज अगर इलेक्ट्रोड हमने अलग कर दिए, इलेक्ट्रोड एक में एक कंडीशन तो होती है कि इलेक्ट्रोड की बात होती है, इलेक्ट्रोड दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं. एक होता है न्यूट्रल, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट का बना हुआ, और एक होता है हमारा किसी मेटल, मतलब किसी पर्टिकुलर मेटल का बना हुआ. उस मेटल का, द मेटल विच इज ऑल्सो गोइंग टू यूटिलाइज्ड इन एज अ इलेक्ट्रोलाइट. मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा. एक मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है, एंड वो मेटल हमने इस इलेक्ट्रोड में ली है जो एक, इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ, सपोज सिल्वर ले लिया मैंने, सिल्वर का मैंने इलेक्ट्रोड लिया, और मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया सिल्वर नाइट्रेट. मतलब आई एम टेकिंग द मेटल, ओके, दैट काइंड ऑफ मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, उस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइट भी लिया है. आर यू गेटिंग मी? इलेक्ट्रोलाइट भी हमने उसी मेटल का लिया, इलेक्ट्रोड भी उसी का ले लिया. एक न्यूट्रल में क्या होता है, सपोज हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, आर यू गेटिंग मी, और इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने AgNO3. सो इसमें जो हमने मेटल यूज की है सिल्वर, इसका इलेक्ट्रोड नहीं है, किसी और इलेक्ट्रोड है, कोई और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है. सो दोनों ही कंडीशन में
अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोड ले लें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का ही एक कंपोनेंट हो तो प्रोडक्ट अलग आएगा। अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोड ले लें जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे मेटल है उससे बिल्कुल अलग है तो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। दोनों कंडीशन को मैं देखता हूँ, दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट होगा इट वुड बी टोटली डिफरेंट। ओके क्लास, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये न्यूट्रल वाला बॉडी का। ओके, इसको ले लेते हैं, न्यूट्रल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ओके, listen class, we are having AgNO3. okay, और हमने इसका aqueous solution लिया है, aqueous AgNO3 solution लिया। so class it would be broken down into AgNO3 would be broken down, लेकिन हमने इलेक्ट्रोड जो लिया ना प्लेटिनम लिया which is neutral, इस मेटल से मिलता जुलता नहीं है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। okay, AgNO3 would be broken down Ag plus NO3 minus, as it is aqueous solution water भी होगा, and this water would also be broken down into H plus ion and OH minus। okay class, अब देखो ये दो चीजें बनी, अब देखते हैं हम एनोड पर क्या होगा। या कैथोड पे ले लेते हैं पहले। कैथोड पर क्या होता है क्लास, रिडक्शन, डू यू रिमेंबर, कैथोड पर। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन कौन कौन गेन करना चाहेगा, दो कैंडिडेट बताओ हमारा। एक तो H प्लस आयन विल टेक इलेक्ट्रॉन, इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड इज Ag प्लस आयन विल टेक द इलेक्ट्रॉन। सो इन दोनों में कंपटीशन होगा, Ag plus or H plus, who will take the electron, who will get reduced। now class you just let me know one thing, अभी मैंने बताया था जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो सिल्वर का होता है प्लस 0.8 वोल्ट, हाइड्रोजन का होता है 0। किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है टू गेट द इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली सिल्वर का, क्योंकि इसका प्लस 8 है, आई मीन 0.8 प्लस 0.8 है और इसका 0 है तो इसकी ज़्यादा है सिल्वर की। सो ऑब्वियसली हु विल टेक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर विल टेक इलेक्ट्रॉन। सो कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड बी चेंज इनटू सिल्वर मेटल। सो कैथोड पे तो ये हुआ, अब एनोड पर देखते हैं क्या होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देयर वुड बी द अगेन कॉम्पिटिशन, नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन। कौन रिलीज करेगा क्लास, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से देखना आप। इसमें देखो किसकी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, नाइट्रेट आयन की या OH आयन की। देखो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की, अपने पास रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। सो ये दोनों में से कोई तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो कौन इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करना नहीं चाहेगा, जिसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी ज़्यादा है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है और एक नाइट्रोजन भी लगा रखा है, और तीनों ऑक्सीजन की कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो ये एक N है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एक 3 O हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन कभी भी रिलीज नहीं करना चाहेगा, तो क्या करेगा, OH ही अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कौन करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज अपने, ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी आयन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना क्लास वैसे ही करना। बुक में बहुत अजीब अजीब चीज़ें दे रखी हैं, यही करना, इसी से तुम्हारे क्वेश्चन चाहे नीट हो चाहे IIT हो चाहे बोर्ड ठीक होंगे। सो OH विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ओके, ये रेस यहाँ पे जीत जाता है OH, यहाँ पे 4 OH लेंगे तभी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। और जब भी OH होता है ध्यान रखना, OH is changed into O2 gas and water। सो वाटर का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं मेन, क्योंकि वाटर तो वाटर में ही मिल गया,
ये एक्वस सोल्यूशन था ना. सो एट एनोड व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन गैस इज बीइंग रिलीज्ड. आर यू गेटिंग मी क्लास? whenever we take aqueous silver nitrate solution and we are taking platinum as the electrode, so what is happening at cathode, silver metal is being deposited and at anode the oxygen gas is being released. Is it clear class? समझ आ गया? So final product क्या है? कैथोड पर सिल्वर मेटल वुड बी डिपॉजिटेड एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस वुड बी रिलीज्ड. एक केस हो गया, बिल्कुल यही. मैं रब कर देता हूँ इसको. मैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज करूंगा और कंडीशन काफी चेंज रहेगी. देखो यहाँ पर क्लास मैं इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ. मैंने पहले न्यूट्रल इलेक्ट्रोड लिया था, अब मैंने उसका इलेक्ट्रोड ले लिया जो इलेक्ट्रोलाइट की एक मेटल भी है. ओके, अब इनका डिवीजन जो होगा ऑब्वियसली सेम ही होगा. सिल्वर नाइट्रेट वुड बी deposit, silver nitrate would be dissociated into silver Ag plus and NO3 minus ion, and water, it is aqueous solution, water would again be dissociated into OH and H minus. अब फिर से हम देखते हैं कैथोड पर क्या होता है. देखो कैथोड मीन्स रिडक्शन. ओके क्लास, कैथोड मीन्स रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स कौन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नहीं नॉट रिलीज. रिडक्शन मीन्स कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं. सो देयर वुड बी द कॉम्पिटिशन बिटवीन सिल्वर एंड एच आयन. ओके क्लास, अभी हमने इससे पहले किया एक क्वेश्चन में, इसका है प्लस 0.8 वोल्ट और इसका है 0. तो किसका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज़्यादा है, सिल्वर का. सो सिल्वर विल टेक द इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड सिल्वर, दिस सिल्वर विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड बी चेंज इनटू सिल्वर मेटल. ओके क्लास, सिंपल चीज. कैथोड का तो हमें पता लग गया. अब हम देखते हैं एनोड का. यहां काफी इंटरेस्टिंग है क्लास. अभी आपको 3 प्रोडक्ट मैंने बताए. देखो मैंने बताया कि सिल्वर मेटल थी, ठीक है. एक तो सिल्वर मेटल डिवाइड होती है और एक ये हमारा डिवाइड होता है. एनोड पे होता क्या है एक्चुअली, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना. ओके क्लास, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड ही बात करते हैं. इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है. आर यू गेटिंग मी? तो कैथोड पर तो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है और एनोड पर क्या होता है, ये एनोड हमारा किसका बना होता है, सिल्वर का बना हुआ है. सो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अब इलेक्ट्रोड को भी हम इन्वॉल्व करेंगे. पहले क्या था, सिर्फ 3 चीजें थी जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती थी. 2 चीजें, एक तो था हमारा नाइट्रेट, एक OH माइनस. ये दोनों चीजों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, हमें पहले हमने क्या देखा था, इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा यही चेक किया था. बट यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रोड है जो सिल्वर का बना हुआ है, अब ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा. इट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि ये भी मेटल है. ये इलेक्ट्रॉन, मेटल के तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल तो रिलीज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन. सो क्योंकि इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर मेटल, सो दिस वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड. आर यू गेटिंग मी? तो पहले इन दोनों में ही कॉम्पिटिशन था कि किसका ऑक्सीडेशन होगा. अब सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है. आर यू गेटिंग मी? याद है तुम्हें जो मैंने बताया था, जिंक जैसे था हमारा, एक मैंने सेल लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ था. तो जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता था. डू यू रिमेंबर जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर. ओके क्लास, अगर ये सिल्वर का बना हुआ है तो इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो अब ऑक्सीडेशन की 3 मेंबर हो गए. किसका ऑक्सीडेशन हो, इन 3 में कॉम्पिटिशन होगा, कौन जीतेगा, OH माइनस, NO3 माइनस या सिल्वर इलेक्ट्रोड. सो यू जस्ट लेट मी नो कौन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा. देखो OH को अगर हम देखें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. इसमें O है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा.
NO3 नाइट्रेट आयन में 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग मी? तो अगर हम इन दोनों का कॉम्पिटिशन करें, मैंने पहले भी कराया था, इन दोनों का कॉम्पिटिशन हो कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऑब्वियसली OH जीता था। तो इन दोनों में तो ये तो कैंसिल हो गया, नाइट्रेट आयन तो नाइट्रेट आयन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल नाइट्रेट आयन के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे अपना। तो क्या बचा? OH बचा। अब हमारे बीच में जो कंपटीशन बचा वो सिल्वर और OH के बीच में बचा। इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? क्लास ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड सिल्वर इज अ काइंड ऑफ मेटल क्लास। और मेटल की क्वालिटी क्या होती है? ये इनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ मेटल। सो OH में तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ये कहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा? कर ही नहीं सकता, इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता है। सिल्वर क्योंकि ये मेटल है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर सकता है। तो इन दोनों में अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, या द थिंग विच विल the metal which will get, the element which will get oxidized, it would be definitely silver। तो इन दोनों में सिल्वर जीता। यहां पर सिल्वर जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आर यू गेटिंग मी? सो क्लास, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लें और हम उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है हमारा एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर ही इलेक्ट्रोड लिया है, तो क्या हो रहा है? कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता है, और एनोड पर सिल्वर जितना डिपॉजिट होता है ना कैथोड पे, उतना ही अमाउंट सिल्वर फिर से सिल्वर आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैथोड पर तो ये सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पर सिल्वर रिलीज हो रहा है, एनोड इसका ब्रेक हो रहा है। तो जितना अमाउंट कैथोड पर सिल्वर का डिपॉजिट होता है, उतना ही अमाउंट एनोड पर सिल्वर का फिर से सोल्यूशन में आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? सो हमने जब सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया, सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं लिया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था, डू यू रिमेंबर? अभी बताया मैंने। तो क्या हुआ था? कैथोड पर सिल्वर मेटल डिपॉजिट हुई थी, और एनोड पर क्लास में मैंने बताया था ऑक्सीजन गैस वाज रिलीज्ड, डू यू रिमेंबर? लेकिन अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो कैथोड पर तो सिल्वर डिपॉजिट होगी, लेकिन एनोड पर सिल्वर जो होगी वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो ये दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल अलग प्रोडक्ट दे रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी IIT में, इसके ऊपर भी IIT और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं, एक्वस कंडीशन और दूसरी कंडीशन भी चेंज कर देते हैं। सो क्लास, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक आप लोगों ने समझ आ गया होगा, इसको घर पे प्रैक्टिस करना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज press the like button. Okay, so goodbye and have a nice day ahead.